Then we are going to start with the today's topic. Okay, and this is actually the continuation of your previous lecture. That is actually regarding with your cancer. So today we are going to discuss that what are the molecular bases of the cancer. Okay, what are the different carcinogenic agents, and then we are going to discuss the clinical aspects of neoplasias. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है रिगार्डिंग द सेलुलर बेसिस ऑफ कैंसर. इट इज एक्चुअली दैट कैंसर जो है दिस इज एक्चुअली कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स. ठीक है. नॉर्मली अगर आप सेल टिश्यूज के अंदर सेल की डिवीजन के बारे में बात करें तो सेल्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली आर गोइंग टू डिवाइड एट अ नॉर्मल स्पीड. ठीक है, ग्रो करते हैं देन दे आर गोइंग टू डिवाइड. And this speed is actually, or you can say this rate is actually going to be matched with the older cells which are going to be die by the process of apoptosis. क्योंकि जो cells older होते जाते हैं उनमें कुछ change आता जाते हैं and these cells are actually are going to commit the suicide by the process of apoptosis. ठीक है. और you can say कि during growth अगर किसी cell में कुछ DNA डैमेज अपेयर हो जाता है या कोई म्यूटेशन अपेयर हो जाती है तो ये सेल्स जो है दे आर गोइंग टू बी आई मीन टू से आइडेंटिफाई दिस चेंज इन देयर डीएनए एंड देन दे आर गोइंग टू कमिट द सुसाइड. ठीक है. सो व्हाट इज एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग डिफरेंट कैंसर्स तभी अराइज होते हैं व्हेन देयर इज एक्चुअली इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल. ठीक है. यानी जब आपके डिफरेंट कैंसर्स हैं उनमें सेल्स की जो ग्रोथ और डिवीजन है जब उसके ऊपर कंट्रोल दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी लॉस्ट then it is going to lead to the appearance of different cancers in the body. ठीक है. So cancer में क्या होता है that there is actually is going to be destruction which is going to be you can say growth में disruption हो जाता है या इस balance में between the growth and the cell death में जो balance है this actually has been lost because of uncontrolled cellular growth. ठीक है. यहाँ फिर क्या हो सकता है कि there is actually is going to be loss of cellular ability to undergo the apoptosis. Mean to say the older cells or the cells which has got the DNA damage they are no more going to commit the suicide. They are going to stay there. ठीक है. As a result of which the number of cells are going to be increased और ये जो abnormal cells हैं they keep on dividing. ठीक है. और जो cells normal हैं they keep on you can say कि उनकी जो डेफिनेटली जो कैंसर सेल्स हैं दे आर नो मोर द नॉर्मल सेल्स. ठीक है. ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंज आ चुका है एंड देयर इज गोइंग टू बी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ दीज सेल्स. ठीक है. So it means कि cancer is actually going to appear whenever there is going to be disruption of this balance between the cellular growth and cellular division. ठीक है. And the cellular death. ठीक है. It means कि cells they keep on dividing at a very rapid rate. ठीक है. And on the other hand the cells which has got this DNA damage within them they are not more going to commit the suicide. ठीक है. As a result of which there is actually going to be excessive number of cells which are going to be present in the tissues and they lead to the formation of cancers. So the cancer cells they do not grow at a faster rate than the normal cell, but rather their growth is going to be uncontrolled. I mean to say they keep on growing at a very you can say their growth is actually going to be not controlled by any other thing. ठीक है. Now we are going to discuss that what is actually the reason behind for the cells to become I mean to say that they are no more being controlled. ठीक है. इसकी reason क्या है? The reason behind is actually is going to be some alterations या mutations हो जाती हैं genetic code के अंदर. ठीक है. अब जेनेटिक कोड के अंदर म्यूटेशंस कैसे आ जाती हैं यानी डीएनए में म्यूटेशंस आ जाती हैं ऑल्टरेशंस हो जाती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच ये सेल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल और वो खुद ही सेल्फ ऑटोनोमस हो जाते हैं फॉर देयर ओन ग्रोथ. ठीक है. अब हाउ दे आर गोइंग टू हैव दिस mutations that there is actually is going to be different carcinogenic chemicals होते हैं जो कि mutations cause कर सकते हैं. कुछ radiations environment में हो सकती हैं or some viral infections can cause the mutations or alteration in the DNA material of these cells. Yeah, few of the cancers are going to be hereditary. ठीक है. So अब ये सब factors जो हैं what they are going to do they are going to cause some change within the
DNA material of these cells, as a result of which now these cells are going to become autonomous on their own and they keep on dividing. So okay, these are actually the abnormal cells. Okay. So molecular basis क्या है कैंसर की? That the cancer is actually a genetic disease. It means that the genes of the cells has been now changed because of some mutations. ठीक है. अब ये जो mutations हैं genes में, this can result during the cellular division. यानी cell जब divide हो रहे होते हैं during that time ये mutations हो सकती हैं. कुछ external chemical या environmental factors हो सकते हैं which can cause these mutations, या randomly ये mutations जो है ये DNA material में हो सकती हैं. And as a result of these mutations, now the cells are going to have I mean to say they are no more under the control of different controlling factors in your body, और वो autonomous हो जाते हैं in their growth and in their division. ठीक है. So most of the cancers जो हैं body के अंदर they are going to result because of mutation in the somatic cells. So you know this thing कि हमारा जो हमारी जो body है it is actually composed of somatic cells and the germline cells. Germline cells वो होते हैं which are responsible for the reproduction. ठीक है. तो mostly जो आपके cancers हैं they are going to result for the from the mutations in the somatic cells. Somatic cells में mutations की वजह से result होते हैं. लेकिन कुछ cancers ऐसे भी हैं जो कि germline cells के अंदर mutations की वजह से appear होते हैं. ठीक है. So what are the genes which are going to play an important role for the development of the cancers in our body? ठीक है. इनमें oncogenes हैं, tumor suppressor genes हैं, ठीक है, और DNA repair genes हैं. These are the main genes which are actually responsible for the appearance of different cancers in our body. ठीक है. तो अब आपने ये इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि नॉर्मली जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ और जो प्रोलिफरेशन होती है दिस इज अंडर कंट्रोल. ठीक है. Normally cell में proto-oncogenes होती हैं. These proto-oncogenes are actually going to give the positive signals for the cellular growth and proliferation. ठीक है. ये सेल की ग्रोथ और proliferation के लिए positive signals देती हैं. Mean to say they are going to enhance the growth of the cell as well as proliferation. ठीक है. On the other hand, there are some tumor suppressor genes in our normal cells. ठीक है. ये जो tumor suppressor genes होती हैं, they are actually going to inhibit the cellular growth and proliferation. अब there is actually going to be a balance between the function of both these two genes, as a result of which the cells are actually going to grow and proliferate at a normal rate. ठीक है. लेकिन कैंसर कब अपेयर होता है? A cancer can appear that whenever there is going to be some change or mutation in these genes. ठीक है. अगर आपकी proto-oncogene में भी म्यूटेशन हो जाती है और वो एक्टिवेट हो जाती है, नाउ दिस proto-oncogene हैज बीन चेंज्ड इनटू द oncogene. ठीक है. oncogene में चेंज हो जाती है जब ये, तो ये जो सिग्नल्स दे रही थी फॉर द ग्रोथ and the proliferation of the cell, now these signals has been increased in amount. ठीक है. as a result of which अब cells जो हैं वो बहुत ज्यादा रैपिड रेट के ऊपर ग्रो करना शुरू हो गए, proliferate करना शुरू हो गए. ठीक है. which is going to result in the formation of some tumor in the body. ठीक है. दूसरी तरफ क्या हो सकता है that the tumor suppressor gene has been lost because of some mutation in that. और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन में कोई म्यूटेशन हो गई है, उसका नॉर्मल फंक्शन जो है दैट हैज बीन लॉस्ट, व्हाट इज एक्चुअली इज गोइंग टू रिजल्ट कि जो आपके नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे थे व्हिच इज गोइंग टू इनहिबिट द सेलुलर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, नाउ दिस हैज बीन लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, एंड ग्रोइंग, व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कैंसर्स इन द बॉडी. ठीक है जी. सो दिस इज एक्चुअली यू कैन से द इम्बैलेंस है बिटवीन the signals which are stimulating the cellular growth and proliferation or those which are inhibiting the cellular growth and proliferation. ठीक है. so different mutations जो है in genes के अंदर they are actually going to result in the formation of different cancers in the body. ठीक है. अब ये जो oncogenes और proto-oncogenes है इसका concept हम clear कर लेते हैं. ये जो हमारी बॉडी में डिफरेंट कैंसर्स अपेयर्स होते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्चुअली इसके पीछे रीजन बिहाइंड क्या है कि जीन्स जो होती हैं उनमें कुछ म्यूटेशंस अपेयर हो जाती हैं व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स. ठीक है. अब ये जीन्स कौन कौन सी हैं? प्रोटो-ऑन्कोजीन्स हैं. ठीक है. ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, वो जीन्स जो कि नॉर्मली एपोप्टोसिस को रेगुलेट करती हैं, और कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो कि डीएनए रिपेयर जीन्स होती हैं
ठीक है, जो कि डीएनए के अंदर डैमेज को डिटेक्ट करती हैं और उसको रिपेयर करती हैं। अब इन सारी जीन्स के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है, नाउ दिस कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ट्यूमर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होती हैं, वंस दे आर गोइंग टू हैव म्यूटेशंस, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज ऑन्कोजीन्स। ठीक है, अब ऑन्कोजीन्स जो है, दे आर द actually genes which are responsible for the formation of different tumors in our body. ठीक है, तो आपकी जो ऑन्कोजीन्स हैं, दे आर यू कैन से कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं। ठीक है, अब ये जो कैंसर ऑन्कोजीन्स जो हैं which has been produced after mutations की वजह से ये प्रोड्यूस हुई हैं, these oncogenes are going to promote the autonomous cell growth। ठीक है, अब ऑन्कोजीन्स जब बन जाती हैं तो वो क्या करती हैं, सेल्स को ऑटोनोमस कर देती हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड द सेल ग्रोथ इन द एब्सेंस ऑफ माइटोजेनिक सिग्नल्स। मीन टू से अब सेल्स को कोई आउटसाइड से सिग्नल्स नहीं आ रहे फॉर द डिवीजन, बट रादर नाउ द सेल्स हैव गॉट देयर ओन कैपेबिलिटी दैट दे कीप ऑन ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग। ठीक है जी, अब इन ऑन्कोजीन के जो प्रोडक्ट्स या प्रोटीन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑन्कोप्रोटीन्स। अब ये ऑन्कोप्रोटीन्स होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ दीज सेल्स। ठीक है, there are different oncogenes which has been associated with the different cancers of the you can say humans, जो कि different studies में diagnose हुई हैं। ठीक है, अब ये जो proto oncogenes होती हैं, they can be converted into the oncogenes by insertional mutagenesis, by point mutation या chromosomal translocations में इनमें कुछ चेंज आ जाता है, या जीन एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस में दे आर गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से एक्टिवेशन कि दैट दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजीन्स। So there are more than 100 known oncogenes है। ठीक है, जिसमें से one of the example is going to be your RAS gene। ठीक है, which is going to be responsible for the regulation of your cellular division। ठीक है, RAS जीन है जो कि सेलुलर डिवीजन को कंट्रोल करती है। अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ दिस जीन। ठीक है, विच लीड्स टू द अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अब सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड रेट के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ट्यूमर्स इन द बॉडी। ठीक है, so more than 25% of the human cancers are actually associated with the RAS gene। ठीक है, और भी बहुत सारी यू कैन से oncogenes हैं which are responsible or associated with a different form of cancers in the human body। okay, next are going to be your tumor suppressor genes। by name पता चल रही है कि that these genes are actually responsible for the inhibition of the formation of different tumors in our body। ठीक है, for example p53 gene है which is going to be play an important role in the normal cellular division। ठीक है, और साथ साथ क्या करती है, डीएनए रिपेयर में हेल्प करती है, यानी सेल्स की डिविजन्स को नॉर्मल रखती है। along with that it is responsible for the repair of any damage in the DNA। ठीक है, and they are critical for detecting inappropriate growth signals or DNA damage in the cells। mean to say कि अगर सेलुलर ग्रोथ के जो सिग्नल्स हैं उनमें कोई मीन टू से चेंज आ जाता है तो ये उसको भी डिटेक्ट करती है। along with that डीएनए में अगर कोई डैमेज हो गया तो उसको भी ये डिटेक्ट करती है। इट मीन्स टू से कि जो सेल्स जिनमें डीएनए का कुछ डैमेज हो गया है या उनकी ग्रोथ के सिग्नल्स जो हैं दे हैव बीन इनएप्रोप्रिएट, these genes are going to detect that, and then finally these abnormal cells are going to be died by the process of apoptosis। ठीक है, मीन टू से वो abnormal cells जो होते हैं उनको diagnose once they are detected they are going to be vanished from the body by the process of apoptosis। but if there is actually going to be some mutation in these tumor suppressor genes, what is actually going to result, this can result in the survival of these abnormal cells in the body। ठीक है, और जब ये abnormal cells survive करेंगे तो definitely they are going to grow and divide and result in the formation of different cancers in the body। ठीक है, if these genes are going to have some sort of inherited or acquired mutations, they are going to become unable to function। ठीक है, as a result of which they are no more going to detect any DNA damage, or they are no more going to detect the abnormal growth of the cell, as a result of which the cells are going to become they are going to proliferate and divide at their own, and they are going to result in the formation of different tumors in the body। ठीक है, so
अच्छा नेक्स्ट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जितनी भी जीन्स होती हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 2 एलील्स होती हैं फॉर एवरी जीन, ठीक है। अगर किसी भी जीन की एक एलील के अंदर म्यूटेशन होगी है बट अदर कॉपी इज एक्चुअली इज गोइंग टू बी नॉर्मल, ठीक है, दैट कॉपी इज एक्चुअली गोइंग टू डू इट्स फंक्शन, ठीक है। तो अगर एक डिफेक्टिव कॉपी जो है किसी भी पर्सन के अंदर इनहेरिट हो गई है फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट, ठीक है, और दूसरी कॉपी उसकी नॉर्मल है, that person is actually going to do normal. But if during life the second part of that gene or the second allele is going to have some sort of mutation during the life, then that function of that gene is actually is going to be lost, and now this can result in the formation of different tumors in that person, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक और एग्जाम्पल है रेटिनोब्लास्टोमा जीन है, ठीक है, आरबी जीन है जो कि इनकोड करती है आरबी प्रोटीन को which regulates the cell cycle by stopping the DNA replication, ठीक है, मीन टू से ये सेल्स की ग्रोथ और एप्लीकेशन को कंट्रोल में रखती है। अगर इस जीन की म्यूटेशन हो जाएगी सो दिस इज एक्चुअली इज गोइंग टू रिजल्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैंसर्स, ठीक है। सेल्स जो हैं अफेक्टेड सेल्स होंगे दे आर गोइंग टू कीप ऑन डिवाइडिंग एट अ वेरी रैपिड रेट और दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कैंसर्स, ठीक है जी। Another important regulatory जो जीन है this is going to be your P53 जीन है जो कि प्रोड्यूस करती है एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं P53 प्रोटीन, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करती है, दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डैमेज्ड डीएनए in the normal cells and promotes the cell death by the process of apoptosis. Means कि P53 gene जो होती है this is also responsible for the detection of damaged DNA within the cells, और वो जो cells जिनमें DNA damage appear हो चुका है it is responsible for the you can say removal of these damaged cells from the body by the process of apoptosis, ठीक है। लेकिन अगर इस सेल की अगर इस जीन की भी म्यूटेशन हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट द सेल्स विद द एबनॉर्मल डीएनए आर गोइंग टू सर्वाइव एंड दे आर गोइंग टू डिवाइड, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस कैन रिजल्ट इन द पैसेज ऑफ दिस एबनॉर्मल डीएनए टू द डॉटर सेल्स, ठीक है। नए सेल्स बनते जाएंगे विद दिस एबनॉर्मल डीएनए व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट न्यूप्लेजियाज इन द बॉडी, ठीक है, या डिफरेंट ट्यूमर्स इन द बॉडी। And this P53 gene has also been found in the many human cancers. अच्छा ये लिस्ट है प्रोटो ऑन्कोजीन्स की जो कि डिफरेंट ट्यूमर्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोस्टेट ग्रोथ फैक्टर एक प्रोटीन है, ठीक है, या एक ग्रोथ फैक्टर है जिसकी ऑन्कोजीन जो है दिस इज गोइंग टू बी योर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, उसकी जीन है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 3 प्रोटोऑन्कोजीन है। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है नाउ दिस इज गोइंग टू हैव एम्प्लीफिकेशन मीन टू से इसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, इसका फंक्शन इनहांस हो जाता है विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियोसार्कोमा या स्टमक कैंसर या ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या मेलानोमा, इनमें से कोई भी कैंसर अपेयर हो सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और देयर कैन बी अनदर फैक्टर फॉर एग्जांपल प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, उसकी इसके लिए जो प्रोटोऑन्कोजीन है दिस इज गोइंग टू बी योर PDGFB, ठीक है, ये प्रोटोऑन्कोजीन है। अगर इसमें भी म्यूटेशन हो जाती है इट रिजल्ट्स इन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा जो कि ब्रेन का ट्यूमर, ठीक है। इसी तरह से ये डिफरेंट लिस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से रिलेटेड एक यू कैन से इस रिसेप्टर से रिलेटेड प्रोटोऑन्कोजीन है, और अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो इट कैन रिजल्ट इन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन व्हिच कैन कॉज ग्लायोमास और ल्यूकीमियास, ठीक है। तो आपने इसमें से जो है इम्पोर्टेंट वाले जो है ना आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, उनको आपने मेमोराइज करना है कि कौन से वाले कैंसर जो हैं वो कौन सी ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन की वजह से पेयर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं कि रास सिग्नल ट्रांसडक्शंस एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसकी प्रोटोऑन्कोजीन है BRAF। इसमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह से या ट्रांसलोकेशन की वजह से इट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेलानोमास, ल्यूकीमियाज या कोलन कैंसर जो है ना वो अपेयर हो सकते हैं, ठीक है जी। So this is actually the list of proto-oncogenes in which the mutations can result in the formation of different tumors in the body. ठीक है?
अच्छा, next we are going to discuss this thing that what are the cellular and the molecular hallmarks of the cancers. ठीक है, यानी जो cancers होते हैं उनके cellular और molecular level के ऊपर क्या main changes आती हैं. ठीक है, so जितने भी जो cancers हैं उनकी जो cell physiology होती है it has been changed. ठीक है, यानी कि जो normal physiology क्या होती है, normal function of the cell. Physiology mean to say how the cells are going to do the different functions. So जितने भी cancers होते हैं उनकी physiology जो होती है या उनका जो function होता है, cellular function, that has actually been changed. और उसमें हमने 8 fundamental characteristic you can say found किए हैं जो कि change हो जाते हैं in these cancer cells which are responsible for the appearance of different cancers in the body. ठीक है, अब वो क्या क्या characteristics हैं which we have found which has resulted in the formation of different cancer. First of all, there is going to be the self sufficiency in growth signals. ठीक है, यानी ये जो cells होते हैं इनमें जो ट्यूमर्स जो आपकी जीन्स हैं जिनमें म्यूटेशंस हो चुकी हैं, now these mutated genes have responsible for the growth of these cells. ठीक है, आप इन सेल्स को बाहर से कोई ग्रोथ सिग्नल्स नहीं चाहिए बट रादर उनकी अपनी म्यूटेटेड जीन्स जो हैं वो उनको ग्रोथ के लिए सिग्नल्स देती रहती हैं. ठीक है, ये ऑनको जीन्स जो होती हैं they are responsible for the stimulation of the growth of these cells. ठीक है, so as a result of which they are going to become self sufficient in the growth signals. ठीक है, they do not require any sort of signals from the outside but rather they keep on dividing on their own. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, they have become insensitive to the growth inhibitory signals. अगर ये जो सेल्स बहुत ज्यादा रैपिड रेट पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इन सेल्स को आउटसाइड से अगर कोई सिग्नल्स आते हैं which are responsible for the inhibition of the growth of these rapidly growing cells, तो ये उन सिग्नल्स के लिए insensitive हो जाते हैं and they keep on dividing at a very rapid rate. ठीक है, the tumors may not respond to the molecule that inhibit the proliferation of normal cells, usually because of inactivation of tumor suppressor genes, because इनके अंदर जो tumor suppressor genes हैं they have become, mean to say they have become inactivated, which as a result of which now these cells are going to not stop their division and their growth and they keep on growing. ठीक है, क्योंकि इनमें जो tumor suppressor genes हैं they have become mutated. Next point is that they have altered cellular metabolism. Mean to say कि इनकी जो metabolism है इसमें भी change आ जाता है, that the tumor cells undergo a metabolic switch to aerobic glycolysis. अब aerobic glycolysis की वजह से क्या होता है कि there is actually going to be that these cells have become unable to synthesize a lot, mean to say a lot of macromolecules and organelles which are required for the rapid growth of these cells. ठीक है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं वेरबर्ग इफेक्ट. मीन टू से अब ये जो सेल्स हैं ये बहुत ज्यादा रैपिड रेट के ऊपर जो है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू अपनी जो कंस्ट्रक्टिव मटेरियल है उसको बिल्ड अप करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे आर गोइंग टू हैव ऑल दोस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द डिवीजन ऑफ द सेल. ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, वेरबर्ग फिनोमेना. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, दैट दे हैव गॉट इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस. मीन टू से अब इनमें इन सेल्स में एक्चुअली डिफरेंट डीएनए डैमेज और म्यूटेशंस अपीयर हो गई हैं बट स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू कमिट द सुसाइड और यू कैन से एपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है. नॉर्मली क्या होता है कि जब भी सेल्स में कोई डीएनए डैमेज होता है, म्यूटेशन होती है, तो आपका जो सेल है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और ये डैमेज्ड सेल्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू कमिट द प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ठीक है, लेकिन अब ये जो ट्यूमर सेल्स है जिनमें डीएनए में म्यूटेशंस अपीयर हो गई हैं बट स्टिल दे आर नो मोर गोइंग टू कमिट द सुसाइड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे हैव गॉट लिमिटलेस रेप्लिकेशन पोटेंशियल. मीन टू से कि अब ये सेल्स जो है ना दे हैव नाउ बिकम जस्ट लाइक द स्टेम सेल्स की तरह हो गए हैं और दे कीप ऑन डिवाइडिंग, and there is going to be no limit or no restriction for the number of division of these cells. ठीक है, अब ये जो cells हैं वो immortal हो चुके हैं और they are going to keep on dividing, though okay, they are going to have mean to say some mutations in them but still they keep on dividing at a very rapid rate. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट दे आर गोइंग टू हैव सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस. मीन टू से दैट ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं they are actually mean to say they are going to stimulate the formation of new blood vessels in their surrounding.
डेफिनेटली जब वो बहुत ज़्यादा रैपिड रेट पे ग्रो कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स in their surroundings so that they can get all the material required for the growth of that tumor, ठीक है। सो इसीलिए जो आपके malignant ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज। डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके malignant ट्यूमर्स होते हैं दे हैव गॉट दिस कैपेबिलिटी दैट दे कैन इन्वेड इनटू देयर सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यूज में भी इन्वेड कर देते हैं, एंड देन दे हैव दिस कैपेबिलिटी दैट दे कैन मेटास्टेसाइज through the lymphatics, through the hematogenous way to the different distant parts of the body, ठीक है। और this different metastasis in the body can result in the different symptoms or even the death of the patient, ठीक है। अच्छा, now the next characteristic is going to be that these cancer cells have got the ability to evade the host immune response, ठीक है। अच्छा, जब भी हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो वी नो दिस थिंग कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें एक रोल उसका ये भी है कि वो जो एबनॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के अंदर जिनमें डीएनए डैमेज या म्यूटेशंस अपीयर हो गई हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करें और उनको डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। लेकिन अब ये जो आपके एबनॉर्मल सेल्स हैं जो कि विच हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट कैंसर्स, ठीक है। अब ये सेल्स क्या हो गए, दे हैव गॉट द एबिलिटी कि वो आपके इम्यून सिस्टम को एस्केप कर लेते हैं, ठीक है। और इम्यून सिस्टम से एस्केप होके दे आर गोइंग टू ग्रो अप एंड देन दे आर गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कैंसर्स, ठीक है जी। और ये भी क्यों होता है, बिकॉज दे हैव गॉट द डिफरेंट ऑन्कोप्रोटीन्स इनमें अपेयर हो गई हैं जो कि म्यूटेशंस की वजह से अपेयर हुई हैं, और now they have adapted themselves somehow that they are not no more going to be recognized by the immune system, and they are no more going to be destroyed by the immune cells, ठीक है। और जब ये cells destroy नहीं होंगे so they keep on dividing and growing, and this results in the formation of different cancers in the body, ठीक है। So these are the basically 8 characteristics which has been found in the cancer cells which results in the formation of tumors, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर्स, ठीक है। अभी जैसे हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली डिफरेंट यू कैन से ये जो म्यूटेशंस अपेयर होती हैं विद इन द सेल्स व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कैंसर्स, दे आर बीइंग कॉज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। अब उन फैक्टर्स में केमिकल फैक्टर्स भी हैं आपके which are going to be very important, play an important role in the appearance of different cancers, ठीक है। तो one of the most you can say या first जो आपके कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं वो हैं आपके केमिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, ठीक है। यानी डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं which are going to result in the formation of different mutations or alterations within the cells, which results in the uncontrolled growth and proliferation of these cells, ठीक है। अब ये जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं इनको हमने डिवाइड किया डायरेक्ट एक्टिंग में और इनडायरेक्ट एक्टिंग में, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं, which do not require a metabolic conversion in the body to become activated, ठीक है। मीन टू से ये जो आपके कुछ केमिकल कार्सिनोजन से होते हैं डायरेक्टली जब वो बॉडी में एंटर होते हैं तो वो जो है कार्सिनोजेनिक अपना एक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर कि उनको पहले डिफरेंट केमिकल्स में बॉडी में चेंज होना पड़े टू बिकम एक्टिव, ठीक है। मोस्ट आर वीक कार्सिनोजेंस होते हैं बट सम आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर कैंसर कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है। यू कैन से कि इसकी एक एग्जांपल जो है is one of the example of these direct acting carcinogens is going to be your chemotherapeutic drugs हैं जो कि actually use होती हैं for the treatment of different cancers in our body, ठीक है। अब ये actually तो ये drugs जो है treatment में use हो रही हैं for different cancers, but on the other hand what these drugs are going to do, they are responsible for the appearance of different more cancers in that person, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लें तो यू कैन से कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं डिफरेंट कैंसर्स की,
लेकिन एट द सेम टाइम क्या करते हैं कि ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं उस पर्सन में लीकीमियाज, लिम्फोमास या ओवेरियन कैंसर्स जो की ट्रीटमेंट में अगर हम यूज करें इनको, तो दे कैन कॉज अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट कैंसर्स इन दैट पर्सन आल्सो। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइलॉइड लीकीमिया जो है ये कॉज कर सकते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर हम इन एजेंट्स को यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अदर कैंसर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो कार्सिनोजेंस होते हैं, these are actually the chemicals जो कि after entering into the body they require the metabolic conversion। ठीक है, डायरेक्टली वो कार्सिनोजेनिक नहीं होते, लेकिन जब वो बॉडी में एंटर होते हैं तो मेटाबॉलिक कन्वर्जन की वजह से वो कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर एक्चुअली कार्सिनोजेनिक। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, या बेंजोपायरीन्स है। ठीक, and they can result in the formation of different cancers in our body। अच्छा, ये लिस्ट है केमिकल कार्सिनोजेंस की which are responsible for the formation of different tumors in our body। ठीक है, इनमें डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस हैं एंड देन दे आर गोइंग टू बी योर इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, जो डायरेक्ट एक्टिंग है उसमें आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स आ जाते हैं, एसाइलेटिंग एजेंट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, और मीटू से द अदर इनडायरेक्ट एक्टिंग केमिकल जो हैं उसमें भी आपके पॉलीसाइक्लिकल और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स और एमाइड्स आ जाते हैं। कुछ नेचुरल प्लांट और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिसमें एफ्लाटॉक्सिन B1, ग्लिसियोफल्विन, ठीक है, सिसासिन है। ये सारे के सारे जो नेचुरल प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं दे कैन आल्सो कॉज डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैंसर्स इन द ह्यूमंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ और केमिकल्स की अगर हम बात करें तो जिसमें नाइट्रोसामीन्स हैं, एमाइड्स हैं, विनाइल क्लोराइड है, निकल है, क्रोमियम है। ये सारे के सारे डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं जो यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो वंस दे आर गोइंग टू एंटर इनटू योर बॉडी दे कैन कॉज अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट कैंसर्स। ठीक है, सो यू शुड नो दिस थिंग कि कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस भी होते हैं क्योंकि आफ्टर एंटरिंग इनटू द बॉडी दे कैन कॉज द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट कैंसर्स। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी next reason behind for the appearance of these cancer is going to be different form of radiations। ठीक है, और इन रेडिएशंस में अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, यू नो दिस थिंग कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन की होती हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट स्किन कैंसर्स। ठीक है, सो डेफिनेटली ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द डिफरेंट म्यूटेशंस in the genes, as a result of which now the cells are going to become uncontrolled in their growth and proliferation। ठीक है, इसके अलावा आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फॉर एग्जांपल आपकी जो एक्सरेज हैं, ठीक है, आपका सीटी स्कैन है, इनमें भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं एंड एक्सपोजर टू दीज आयोनाइजिंग रेडिएशंस is going to result in the appearance of different mutations within the cells। ठीक है, सिमिलरली आपका न्यूक्लियर प्लांट एक्सीडेंट्स, यानी कि जो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं अगर वहां से भी आपकी रेडिएशंस लीक आउट कर जाती हैं जो कि सराउंडिंग में वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं। ठीक है, एटॉमिक जो बॉम्ब्स होते हैं उनकी वजह से भी उनकी जब एटॉमिक बॉम्ब्स को यूज किया जाता है this can also result in the different appearance of different form of radiations which can cause mutation within the genes। ठीक है, and now they can result in the appearance of different cancers in the persons who have been exposed to these radiations। next is that there is going to be different RNA या DNA viruses भी होते हैं which are responsible for the you can say causing this oncogenic change within the humans or even within the animals। ठीक है, और इसमें जो डिटेक्ट हुए हैं उसमें ह्यूमन टी सेल लीकीमिया वायरस टाइप 1 है जो कि ह्यूमंस के अंदर लीकीमिया कॉज करता है। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है which is also responsible for causing the different tumors in the humans। ठीक है, एप्स्टेन बार वायरस है जो कि हॉजकिंस लिम्फोमा कॉज करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है, this organism is also responsible for causing the stomach tumor in the humans। ठीक है, तो अब ये माइक्रोबियल फैक्टर्स हैं कुछ, ठीक है, रेडिएशंस हैं और there are different chemicals which are responsible for causing the tumors। जी, क्लास अभी तक का सारा टॉपिक क्लियर है आप सबको? कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क मी।
मैम आ गया समझ। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो कैंसर पेयर होता है बॉडी में, ठीक है, उसकी एक तो ये हमने डिस्कस किया कि वो सेल्स की क्या आई मीन टू से रीजन बिहाइंड क्या है, म्यूटेशंस कैसे हो जाती हैं, कौन सी जीन्स हैं जो कि नॉर्मल सेल ग्रोथ फंक्शन को कंट्रोल कर रही हैं, अगर उनमें कोई म्यूटेशंस हो जाती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द एबनॉर्मल जीन्स जिन्हें हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ठीक है। और ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स अगर उनमें कोई म्यूटेशंस हो जाएं तो दिस कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ट्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ दीज म्यूटेशंस, ठीक है। उसमें हमने केमिकल एजेंट्स की बात की है, रेडिएशंस के बारे में बात किया, और कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं व्हिच आर रिस्पांसिबल, और माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग दीज कैंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एक this is going to be a you can say separate एक entity है in the topic of your cancer, ये है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है? अच्छा, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है दिस इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ, अच्छा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या है? दीज आर एक्चुअली यू कैन से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट्स ऑफ कैंसर में अपेयर होते हैं एक्सेप्ट फॉर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि अगर आप डिफाइन करें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम को तो दे आर डिफाइंड एज क्लिनिकल सिंड्रोम्स इन्वॉल्विंग द नॉन मेटास्टैटिक सिस्टमिक इफेक्ट्स दैट अकम्पनिंग द मेलिग्नेंट डिजीज, ठीक है। यानी एक तरफ तो उस पेशेंट को मेलिग्नेंसी है या कैंसर है उसकी वजह से अपने सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ पेशेंट्स को कुछ और सिम्टम्स भी अपेयर हो रहे हैं, और उन सिम्टम्स के ग्रुप को हम बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस तरह से कि अगर एक पेशेंट है जिसको लंग का कैंसर है, ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग है। अब ये कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि mean to say they are which are responsible for the production of different you can say hormone like products produce करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ACTH, यानी आपका जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। अब जब भी एक्सेस ऑफ ACTH बॉडी में होगा दिस कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, मीन टू से कि आप उस पेशेंट के अंदर एक तरफ तो लंग कैंसर है, along with that now the patient is going to have the symptoms of Cushing syndrome also, ठीक है। तो ये जो Cushing syndrome की appearance है उस पेशेंट में this is actually the paraneoplastic syndrome, ठीक है। Similarly जो है some cancers are responsible for the production of inappropriate ADH hormone, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब एक्सेस अमाउंट में ADH हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो उसके अपने सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं पेशेंट में, ठीक है। क्योंकि ये जो यू कैन से कैंसर्स हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ADH हार्मोन लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि उसकी सिम्टम्स को या साइंस और सिम्टम्स को अपेयर कराता है उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। सिमिलरली अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है लंग का, ठीक है, this is responsible for producing the parathyroid like hormone, ठीक है, as a result of which the patient is going to have hypercalcemia। तो पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा बॉडी में तो डेफिनेटली व्हाट इट इज गोइंग टू लीड, इट इज गोइंग टू लीड टू द हाइपरकैल्सीमिया इन दैट पर्सन, ठीक है। और जब हाइपरकैल्सीमिया होगा तो हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, कुछ ब्रेस्ट कैंसर है, कुछ रीनल कैंसर है, ठीक है, कुछ लिकीमियाज या लिम्फोमाज हैं जो कि पैराथायरॉयड लाइक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपरकैल्सीमिया अपेयर हो जाता है, ठीक है। अब कुछ ओवेरियन कैंसर्स हैं या फाइब्रोसार्कोमास हैं और कुछ मीजेंकाइमल सार्कोमास हैं जो कि इंसुलिन लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं विच रिजल्ट्स इन द हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट्स, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को एंटर करा देती है विद इन द सेल्स which results in the appearance of hypoglycemia in that patient, ठीक है। अब ये सारे कैंसर्स अपनी अपनी प्लेस पे अपने सिम्टम्स को कॉज करेंगे बट अलोंग विद दैट ये कुछ हार्मोन लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं which leads to the appearance of some other group of symptoms in that patient, ठीक है। तो ये अदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स में गैस्ट्रिक कार्सिनोमास, रीनल कार्सिनोमास,
सेरिबेलर हेमेंजियोमा जो है वो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करते हैं। अब एरिथ्रोपोइटिन क्या करती है, आरबीसीज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पेशेंट्स आर गोइंग टू हैव पॉलीसाइथीमिया, उनका आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अनदर सिम्टम विच हैज अपीयर्ड इन दैट पेशेंट हु हैज गॉट डिफरेंट मेलिग्नेंसी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स आर द रेयर डिसऑर्डर्स that are triggered by an altered immune system response to a neoplasm. ठीक है, and they are defined as clinical syndromes involving non metastatic systemic effects that accompany the malignant disease. ठीक है, इसमें different endocrinopathies आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको बताया कुशिंग सिंड्रोम्स है, हाइपरकैल्सीमिया है। ठीक है, न्यूरोपैथिक सिंड्रोम्स भी अपेयर होते हैं, मीन टू से कुछ पेशेंट्स के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपेयर होती हैं। फॉर एग्जांपल पोलीमायोपैथी हो जाती है, या पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। ठीक है, या न्यूरल डीजेनरेशन हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में स्किन के डिसऑर्डर्स अपेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एकेंथोसिस। एकेंथोसिस क्या होती है, थिकनिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, कुछ पेशेंट्स में स्केलेटल और जॉइंट्स की एबनॉर्मेलिटी अपेयर हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में हाइपरकोएगुबिलिटी की स्टेट अपेयर हो जाती है। ठीक है, so this is all are actually the group of symptoms which appear along with the, you can say, cancer symptoms in a patient who has got different cancers. ठीक है, and we call it as paraneoplastic syndromes. Next अब हमने डिस्कस करना है कि what are the different lab methods which are being used for the diagnosis of the cancers. ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वे है जो यूज किया जाता है, दिस इज गोइंग टू बी द हिस्टोलॉजिकल एंड द साइटोलॉजिकल मेथड। मीन टू से कि डायरेक्ट हम बायोप्सी करते हैं ट्यूमर की, और उससे फिर हम जो टिश्यू प्रिपेयर लेते हैं उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, सेल्स को और टिश्यूज को। ठीक है, सो अब ये जो हम सैंपल ले सकते हैं फॉर स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप, दिस कैन बी टेकन ईदर बाय एक्सीजन और बायोप्सी, यानी बायोप्सी करके उस ट्यूमर को एक्साइज करके हम या तो उसको होल एक्सरसाइज कर दें, या उसका एक पोर्शन है उसकी बायोप्सी लेके देन वी आर गोइंग टू स्टडी इट अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, सेकंड वे क्या हो सकता है, वी कैन डू द नीडल एस्पिरेशन, यानी नीडल से हम सेल्स ले लेते हैं फ्रॉम दैट ट्यूमर सिरिंज से, और फिर हम उनको एक स्लाइड पे माउंट करके देन वी आर गोइंग टू स्टडी देम अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, थर्ड वे क्या हो सकता है कि हम डायरेक्टली साइटोलॉजिकल स्मेयर ले लें, मीन टू से कि हम डायरेक्टली ट्यूमर वाली साइट से किसी ब्रश से और किसी और चीज से, स्पैचुला से, वहां से सेल्स को लेके स्लाइड्स के ऊपर माउंट करें एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी देम अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीए सर्विक्स जो है वहां पे हम ऐसे ही करते हैं कि सर्विक्स के ऊपर से स्मेयर लेते हैं सेल्स का, और उसको हम एक स्लाइड के ऊपर माउंट करते हैं, देन वी आर गोइंग टू स्टडी इट अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे that which is going to help us for the diagnosis of different cancers. ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली टिश्यूज को, सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं और उसमें हमें चेंजेस नजर आ जाते हैं सारे जो कि हॉल मार्क्स हैं किसी भी मेलिग्नेंसी के, एंड वी आर गोइंग टू डायग्नोज दैट। ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, फ्लो साइटोमेट्री है। ठीक है, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स हैं, उनको हम डायग्नोज कर सकते हैं। पीसीआर इज अनदर वे दैट वी आर गोइंग टू which is going to help us for the detection of different tumors. ठीक है, अच्छा ये डायग्राम दिखाया है कि you are going to take the, ये लीजन है यानी ये कोई ट्यूमर है, and you have excised all of that tumor or you are going to study the tissue under microscope. ठीक है, अब ये फाइन नीडल एस्पिरेशन है जिसमें आप एक नीडल के थ्रू you are going to take few cells from that from that tumor or you are going to study it under the microscope. ठीक है, बाकी पीसीआर और डिफरेंट वेज एंड हाउ विच यू आर गोइंग टू डायग्नोज और यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि ये ट्यूमर प्रेजेंट है बॉडी में। अच्छा नेक्स्ट है आपके ट्यूमर मार्कर्स। ठीक है, अब ट्यूमर मार्कर्स जो है क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली द बायोमार्कर्स विच आर फाउंड इन द ब्लड, यूरिन या बॉडी टिश्यूज और में प्रेजेंट होते हैं इन अ पेशेंट हु हैज गॉट स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ ट्यूमर या कैंसर। ठीक है, और इनका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाता है जो कि एक शो करता है द प्रेजेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, और यू कैन से दिस थिंग के बायोमार्कर्स क्या होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स, दे आर एक्चुअली द केमिकल्स व्हिच आर गोइंग टू शो अस द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैंसर्स इन द बॉडी। ठीक है, और ये ट्यूमर्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है,
सो अगर सपोज अगर आपको किसी पेशेंट के अंदर लिवर का कैंसर, लिवर के अंदर जो है ना कोई ट्यूमर डायग्नोज हुआ है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है वो है अल्फा फीटोप्रोटीन है। अब आप उस पेशेंट का सीरम लेवल कराते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन का, वो रेज आता है। सो नाउ दिस इज एक्चुअली गोइंग टू मेक कंफर्मेशन ऑफ दिस थिंग कि ये जो ट्यूमर है विद इन द लिवर, दिस इज एक्चुअली यू कैन से कि ये लिवर का कैंसर है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो इट मीन्स के हर ट्यूमर का अपना एक स्पेसिफिक मार्कर होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपके CA125 लेवल ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सी ओवरी में स्पेसिफिकली CA125 का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। कोलन कैंसर में कार्सिनो एम्ब्रोइक एंटीजन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। इसी तरह से प्रोस्टेटिक कैंसर के अंदर प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन होती है, इसका लेवल ज्यादा हो जाता है। अब एक तरफ और टेस्टिकुलर कैंसर में फॉर एग्जांपल अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा हो जाता है और HCG का लेवल ज्यादा हो जाता है। अब ये ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस एज वेल एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट में जब हम पेशेंट का फॉलो अप करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वंस यू हैव गिवन द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट तो फिर आप दोबारा से उसका ये ट्यूमर मार्कर लेवल कराते हैं। अगर तो वो फॉल कर गया इट मीन्स कि पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। लेटर ऑन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट जब हम पेशेंट का फॉलो अप करते हैं तो उसमें भी हम इस ट्यूमर मार्कर्स के लेवल को कराते हैं टू फाइंड आउट कि पेशेंट में रिकरेंस ऑफ डिजीज ना हो जाए, ठीक है। सो दीज ट्यूमर मार्कर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स हु हैव गॉट डिफरेंट कैंसर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन गोनेडो जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG जो है हार्मोन है एक, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स में, ठीक है, और डिफरेंट टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में राइज हो जाता है। अब आप उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, तो इसका लेवल आप रिपीटेडली करा के देखते हैं बार बार, तो यू फाइंड आउट दैट विद द ट्रीटमेंट इसका लेवल फॉल करना शुरू हो गया, इट मींस द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, ठीक है। और आफ्टर इट्स लेवल हैज गॉन टू जीरो इट मींस पेशेंट हैज बीन क्योर्ड फ्रॉम दैट डिजीज, ठीक है। अब आप उस पेशेंट को के फॉलोअप में इस ट्यूमर मार्कर का लेवल कराते रहते हैं, क्योंकि वंस द डिजीज इज गोइंग टू रीअपियर इन दैट पेशेंट ये ट्यूमर मार्कर फिर लेवल में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अरसलान पूछिए आपने क्या क्वेश्चन पूछना है। अरसलान पूछिए क्वेश्चन। अरसलान आपने हैंड रेज किया है ना, आप पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छा जी, नेक्स्ट और इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड के कैंसर में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मोर लिस्ट है इनकी, अल्फा फीटोप्रोटीन्स हैं जो कि लिवर सेल कैंसर में इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है जो कि प्रोस्टेटिक कैंसर में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज एंजाइम है जो कि स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग में इंक्रीज हो जाता है। इट मींस कि ये हर ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओवेरियन कैंसर में जैसे मैंने पहले भी बताया था CA125 का लेवल जो है वो रेज हो जाता है, ठीक है। कोलन कैंसर या पेंक्रियाटिक कैंसर में CA19-9 का लेवल ज्यादा हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में CA15-3 का लेवल जो है ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं फिर लेटर ऑन फॉलो अप करते हैं तो ये ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इन यू कैन से इन द फॉलो अप ऑफ दीज पेशेंट्स, ठीक है। So this is going to be the end of today's topic.